Executive Director of the school, Sri Pankaj Kumarji, Honorable Principal Madam Neelam Singh, the Vice Principal Sir, Sri P.K. Jha, they all have arrived here. And may I cordially invite our Chief Guest, Sri R.C.P. Saab, the Chairman of the school, to hoist the national flag. The Vice Principal Sir is escorting towards the dais, and Honorable Chairman of the Judy Mother International School Society. Attention! हिमालय जिसका सरताज है, गूंज रहा दुनिया में डंका, भारत का खुशियों का दिन आज है। हमारे सभी हम वतन साथियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय चेयरमैन सर, फाउंडर सर, डायरेक्टर सर, माननीय प्राचार्य महोदया, इंचार्ज महोदया, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं सभी सभा में उपस्थित गणों का मैं अर्चना हार्दिक अभिनंदन करती है। A very good morning to one and all present here, and happy 73rd Republic Day. Myself, Swati. Firstly, I bow prostrate to our motherland, Bharat. This year, Republic Day is very special as we are not only celebrating the 75th anniversary of our Independence Day, but also 125th birth anniversary of our great leader, Subhash Chandra Bose. Great salutation to him. On 24 January 1950, the Constituent Assembly of India has adopted Vande Mataram as national song, which was written by Bankim Chandra Chatterjee, an Indian novelist, poet and journalist. Now, our intellects are going to sing this song to praise our motherland.
बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोगों ने इस गान को सुना। मेरे भाइयों और बहनों, आई लव माई इंडिया। अपने देश की धरती से, अपनी मातृभूमि से प्रेम का जो भाव है वो हम सब की ताकत है। यह जो आज पूरा भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहा है, पूरे भारत में जो उत्साह है, उमंग है, जो जोश है, जो उत्साह, उमंग और जोश हम सब की ताकत है। आज भारत अपने इसी उत्साह, जोश और उमंग के ताकत पर अपने सपने को साकार कर सकता है। मैं इसी उत्साह, उमंग और जोश के साथ अपने आदरणीय माननीय प्रिंसिपल मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपना वेलकम मैसेज। Founder sir, the guest of honor, Director sir, the guest of honor, Deputy Director ma'am, the guest of honor, other guests, parents, worthy teachers, on the auspicious occasion of our 73rd Republic Day celebration. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. These opening words of the preamble of the Indian Constitution presents core values and principles of our nation. The Indian Constitution came into effect on 26 January 1950, and this day is a special day in India's history in more ways than one. Today, the entire nation celebrates the essence of India being a republic. We at GD Mother International School, Muzaffarpur, is gathered here to commemorate the significance of this day. I cordially convey my warmest and sincere gratitude and wishes to you on this historic day. A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people. Here we are in a grand new sparkling year full of hope and zeal, yet laced with a change of worry and anticipation. We have all stepped into the year 2022 with great learning and wisdom from the past few years. Let's not fear of COVID put down the fervor of our patriotism. This year also, the Republic Day celebration is going to be a big different from the past. Much before the Greek philosopher Plato conceived the notion of republic, republican democracy had deepened its root in our motherland India. That is, Bharat was dotted with 16 Mahajanpad in 6th century BC, out of which 3, namely Vajji in Bihar, Mal in Uttar Pradesh and Asmad in Andhra Pradesh, was a republic. The great Indian legacy continued breaking the barriers of time and space. Out of 197 countries across the planet, there are 159 republics. The whole Indian aspiration and imagination did find a concrete shape on 26 January 1950 when our motherland became a sovereign democratic republic. Our constitution is the largest and the lengthiest in the world. The Constituent Assembly was believed to be the representation of the will of the people. The word "we the people" signifies that it was a document given by the people, to the people and for the people. Democracy is meaningful only if the governance is aimed towards the common welfare and common interest of the people. Indian democracy and the Constitution have weathered strong in past and have emerged seaworthy due to this. We may not always know all the proceedings and details of this lengthy document, but we do know the core. After all, we the people gave ourselves this constitution, and we the people are the custodians and upholders of its principles. We as an educators have an appeal task to help students in their understanding of these consequences
innovative principles to be focused on rational and real-life consequences of the Constitution. The students should be made aware of the major influence that our anti-colonial struggle had on Indian democracy. This involves the understanding the relationship between the ideals and the ideas, competition and cooperation, self and collective interest. How the principles of liberty, equality, and justice being practiced in our classroom. How can they coexist? How to practice tolerance and live together in peace. All this could be tackled only with the full strength of teachers' fraternity. There is need to nurture the critical and balanced understanding of these principles to guide our children to become more responsible citizens. It has the power to help a country to develop and move towards progress. It's rightly said by Nobel laureate Aung San Suu Kyi, freedom and democracy are dreams. You never give up. Let's work together and make these dreams come true and alive in the sense of this term. With these few words, I wish you and family a happy Republic Day and best wishes for a bright future and healthy life ahead. Once again, I feel deeply cherished to offer a pleasant welcome to each one of you, as you are the beam of support for all the efforts taken. Lastly, I would request our Honorable Chief Guest, Chairman Sir, to say a few words and bless us on this auspicious occasion of our 73rd Republic Day celebration. Thank you so very much. Who are present here in the campus of G.D. Mother International School. Due to this corona, we have today not seen our students because of the obedience of the order of the government of India. We have to save our child, so we have to maintain the protocol. And our respected teachers, you are also taking classes online. It is very good thing. We are celebrating 73rd Republic Day. You all know that we achieved this Republic after independence, and in detail our learned principal had given you in detail and you have listened to her carefully. Now I thank you all to have your presence on this auspicious occasion. Thank you. आज इस सभागार में हम लोग 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सेलिब्रेट करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इन 73 सालों में 72 सालों में हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की है और विशेष रूप से एजुकेशन के मामले में भी बहुत तरक्की की है। यहाँ के फाउंडर जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर, चेयरमैन, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचिंग स्टाफ एंड मैनेजमेंट स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ये जहाँ तक मेरा ख्याल जाता है जीडी मदर स्कूल 1998 या 99 के आसपास इसका प्रादुर्भाव हुआ था। आज लगभग इसको 23-24 साल हो गए और मुझे कहने में काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है कि मुजफ्फरपुर में जितने इस तरह के स्कूल्स हैं उनमें 1 to 5 में जीडी मदर का अपना एक स्थान है आज की तारीख में। इस स्थान के लिए मैनेजमेंट ने
और स्टाफ ने, टीचिंग स्टाफ ने जो 22 सालों तक मेहनत की है, आप सब प्रशंसा के पात्र हैं। आप लोगों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आज इस मंच से मैं एक दो बातें आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। हमारे बच्चों के बीच एक पीरियड शायद आपके यहाँ हो, एक पेंटिंग का पीरियड, एक म्यूज़िक का पीरियड, एक हैंडीक्राफ्ट का पीरियड होना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट में जो कुछ आपके बच्चे बनाएंगे, आप उन चीज़ों का वितरण अपने एनुअल फंक्शन पर जो आप उन बच्चों को गिफ्ट देंगे, प्रोत्साहन देंगे, उसके साथ साथ आप अपने यहाँ बनाए गए हैंडीक्राफ्ट भी उन बच्चों को दें। आप अपने शोरूम में रखें। देखिए, पेंटिंग एक ऐसी कला है जिसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, और आप किसी भी समय एक छोटे या बड़े कैनवास पर कुछ पेंसिलों के साथ अपनी भावनाओं को उकेरित कर सकते हैं। और उसी तरह म्यूजिक की भी कला है जो लाइफ लॉन्ग अगर आपने कुछ सीखा है तो वो आपके भीतर की चीज़ों को बाहर निकालता है और जन जन तक आपकी फीलिंग्स पहुंचती है। मैं आभार प्रकट करता हूं मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे यहाँ आकर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। अध्यक्ष महोदय को पौधा भेंट करते हुए अब मैं प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करता हूँ कि डॉक्टर DL सिंघानिया सर को पौधा भेंट करें। अब मैं प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करता हूँ कि फाउंडर सर को पौधा भेंट करें। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब, कार्यकारी निदेशक महोदय को पौधा भेंट करें। प्रीति मैम को कार्यकारी निदेशक महोदय, ज्वाइंट डायरेक्टर मैम प्रीति मैम को पौधा भेंट करें।
पावन दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने भाषण की शुरुआत महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक कहानी से करना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा था कि मगध राज की पराजय कब संभव है और किस प्रकार संभव है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब तक मगध में नारी जाति का सम्मान होता रहेगा, उसकी पराजय संभव नहीं है। जब तक मगध में बड़े बुजुर्गों के परामर्श से और उनका आदर सम्मान होता रहेगा, उसकी पराजय संभव नहीं है। और जब तक मगध में गणतंत्र अर्थात सबको साथ लेकर एक सामूहिक शासन की परंपरा का निर्माण होता रहेगा, उसकी पराजय संभव नहीं है। दोस्तों, आज मैं कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में नारी जाति का सम्मान के मामले में नंबर 1 पर है। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान, उनका आदर करने के मामले में अपने संविधान के बताए मार्ग और उनका जो सिद्धांत, उनका जो आदर्श है, उसका पालन करने के मामले में भी हम लोग नंबर 1 पर हैं। मैं कल्पना नहीं बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत की सर्वोच्च सत्ता, भारत की अखंड सत्ता को कोई दीर्घ काल तक चुनौती नहीं दे सकता। ये हमारी ताकत है। मित्रों, आज धरती से लेकर और अंबर तक, अंतरिक्ष तक हमने अपने पुरुषार्थ का परिचय दिया है। आपको भविष्य के भारत का दर्शन करना है तो आप किसी गांव में जाएं। जब गांव के छात्र छात्राएं निकलती हैं तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। आपको अगर भविष्य के भारत का दर्शन करना है तो आप सीमा पर जाएंगे। आप सीमा पर जब कोई महिला सिपाही जब हाथ में बंदूक लेकर वह सीमा की रखवाली करती है तो ऐसा प्रतीत होता है सब कर सकते हैं। मित्रों, भारत दीर्घकाल तक अपने सपने को साकार करता रहे। हम चाहते हैं कि हम जिस अवस्था में हैं, हम जिस स्थिति में हैं, अपने पुरुषार्थ का परिचय देंगे। भारत और आगे बढ़े, ये हम सब के लिए आवश्यक है। और इसके लिए केवल एक संकल्प चाहिए कि हम जब इस धरती पर आए हैं, यह हमारा आपका शरीर नश्वर है, हमारा कर्म, हमारा विचार ही हमें अमरता प्रदान करता है। तो हम अपने विचार, अपने कर्म से अपने भारतवर्ष के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का हम पालन करें। दोस्तों, भारत में चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष, भारत ने एक मजबूती के साथ अपने पुरुषार्थ का परिचय देते हुए और विश्व के सामने अपने आप को सक्षम किया। और भारत इसी प्रकार और भी आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि हम सब लोग अपने अपने हिस्से के पुरुषार्थ का, अपने अपने हिस्से के कर्तव्य का पालन करें। आज जब मैं देखता हूं कि 70 साल में भारत ने जो यात्रा आरंभ की थी, वह यात्रा आज बहुत हद तक पूर्ण हुई है। हम हिमालय के चोटी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा जो अभियान है वह हिमालय के चोटी पर पहुंचकर ही समाप्त नहीं हो सकता। चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर से नया हिमालय करना है, फिर से आगे बढ़ना है, फिर से आगे बढ़ना, यह हमारा संकल्प है। आज हमारे सामने जब मैं देखता हूँ कि भारत ने हर दिशा में प्रगति किया है, लेकिन अभी भी जब सड़कों पर जब छोटी बच्ची या बच्चे को मैं देखता हूँ कि बिखरे हुए बाल, गंदे पुराने वस्त्र और पूरे कचरे के ढेर से चुनता हुआ कूड़ा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी हमारे कर्तव्य के, हमारे हिस्से के कर्तव्य का अंश शेष है। हम आप सब लोग से अपील करते हैं कि आप जीवन के जिस अवस्था में हैं, आप जीवन के जिस परिस्थिति में हैं, आपकी आर्थिक स्थिति जिस प्रकार की है,
लेकिन आपका समाज के प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करने के लिए आप संकल्प ले हमको कुछ करना है। अब आखिर में एक बात, शायद अतिशयोक्ति हो, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव है और गणतंत्र दिवस का पावन अवसर है। आज से 2-3 वर्ष पूर्व एक विचार मेरे मन में उत्पन्न हुई थी, लेकिन काल चक्र का कुछ ऐसा चक्र चला कि मन की बात को मैं अभिव्यक्त नहीं कर पाया। आज माननीय फाउंडर सर भी हम लोग के सामने हैं। आदरणीय फाउंडर सर से मैं अपील करना चाहता हूँ, और यदि अतिशयोक्ति हो तो फाउंडर सर आप हमको क्षमा कर देंगे, लेकिन मन का विचार है एजुकेशन के क्षेत्र में जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल आपने एक ऐसा लकीर खींचा है जिसको आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। दीर्घकाल तक यह आपका कीर्ति, यह आपके अमरता को प्रदान करता रहेगा, यह भाव है। लेकिन आपने शहर के बच्चों के लिए आपने कार्य किया, लेकिन गांव देहात के बच्चे आज भी आपकी प्रतीक्षा में हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी दया दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि गांव के बच्चों की ओर भी जाए और जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल की एक दूसरी शाखा किसी गांव में खुले, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने कर्म से आपके साथ हैं। आपका संकल्प हो तो हर चीज, हर संकल्प भाव से हम कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की असंख्य शुभकामनाएं।
त्रयाधिक-सप्तते अधिक वर्षे गणतंत्र दिवसस्य शुभावसरे एका सूक्ति पूर्वमेव स्मरणं कारणं वर्तते यत् सर्वे सज्जनाः विद्वद्विज्ञवराः उपस्थिताः सन्ति। परमादरणीय अतिथि महोदय, संस्थापक महोदय, अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी निदेशक महोदय, उप कार्यकारी महोदय, प्राचार्य महोदय, सहैव विज्ञ विद्वद्जनाः, शिक्षकाः, शिक्षिकाश्च समस्त विद्यालय परिवारस्य सदस्यजनाः, प्रांगणे उपस्थिताः अन्य सहयोगिजनाश्च हार्दिकं सुस्वागतम्। एका उक्तिः अस्ति, जैसे पूर्वमेव चर्चा कृतवान्, गंगा पापं शशिः तापं दैन्यं कल्पतरुहरे पापं तापं तथा दैन्यं सर्वसज्जन संगमः। अस्मिन् शुभावसरे गणतंत्र दिवसस्य शुभावसरे उपस्थिताः सर्वे सज्जनाः विद्वद्विगाः उपस्थिताः भूत्वा येन प्रकारेण यथा गंगास्नानं कृत्वा पापं नश्यति तथा अस्य सज्जनाः उपस्थिते सह अस्माकं जनानां सर्वं पापं विनश्यति। तापः शशितापं शशि येन प्रकारेण तापम् अवशोषयति, अस्माकं जनानां तापमपि अवशोषयति। दैन्यं दीनताम् अस्मै जनानां सहयोगेन अस्माकं परिवारस्य दैन्यमपि विलीयन्ते। सर्वसज्जनसङ्गमः यस्मिन् स्थाने एतादृशाः जनाः उपस्थिताः भवन्ति तदा सर्वाः दीनतां तापं पापं तुलसीदास महोदय ने कथितवान्, दैहिक ताप येन प्रकारेण शरीरेण सज्जन सहयोगेन भविष्यति। अद्य गणतंत्र दिवसस्य शुभावसरे उपस्थिता भूत्वा अहं हार्दिको शुभाशंसा पुनः करोमि। अद्य भारतदेशे गणतन्त्रम् उद्घोषितं, गणतन्त्रराष्ट्रस्य उद्घोषणां कृतवन्तः, परन्तु तत्र भवन्तः जानन्ति कि अस्य उद्देश्य पूर्व के जनाः सन्ति येन कारणेन अस्माकं भारतः गणतन्त्रम् उद्घोषितः अभवत्। ते सन्ति सुखदेवः, राजगुरु भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि प्रभृतयः जनाः वीरगतिं स्वस्वजीवनम् आहुतिं दत्तवन्तः। अद्य अस्मिन् शुभावसरे तेषां स्मरणं कृत्वा तेषां प्रति श्रद्धाञ्जलिं दत्त्वा समस्त भारतवर्षे अपि कार्यालये संस्थाने अपि अस्य विषयस्य शुभावसरे झण्डोत्तोलनं भवति। तस्य सिद्धान्तं तेषां संकल्पं यदि सर्वे जनाः अनुसृत्य स्वजीवनमेव स्मरणं कुर्वन्ति, कार्यं स्वस्वजीवने यदि कुर्वन्ति तदा देशस्य पूर्णरूपेण उन्नतिः भविष्यति। एवमेव आशा वर्तते कि यत् सर्वे जनाः अस्मिन् अवसरे दृढसङ्कल्पाः धारयेयुः। भारतस्य उन्नतिः केन प्रकारेण भवेत् अस्य चिन्तनम् अवश्यमेव भवेत्। जनकल्याणं केन प्रकारेण, जनसहयोगेन केन प्रकारेण, अन्य भावनया सहयोगेन केन प्रकारेण भारतस्य कल्याणं भवेत्, समृद्धिः भवेत्, धनधान्यसम्पन्नः अस्माकं देशः भवेत्। अस्य उपायः येन प्रकारेण, येन सिद्धान्तेन, येन मनसा वाचा कर्मणा अनेनैव सङ्कल्पं सुदृढं भविष्यति। एतदर्थम् अस्मिन् शुभावसरे अहम् अस्य झण्डोत्तोलन शुभावसरे एकत्रितः भूत्वा निश्चितरूपेण
सङ्कल्पदृढं कृत्वा भारतस्य राष्ट्रस्य दृढनिश्चयम् अवश्यमेव करणीयम्। इयमेव शुभाशंसा, इयमेव शुभकामना। मम अन्ते नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु राष्ट्रीय पताका, वदने वदने सदने सदने जयतु राष्ट्रीय पताका। अनेन इदं वचनेन कथयितुम् अनेकाः विषयाः सन्ति। मम हिंदी विभागस्य राजू महोदयः कथितवान्, संस्थापक महोदयस्य एकः अनुरोधः कृतवान् कि यदि अस्य विद्यालयस्य इति अति प्राचीन न तु किञ्चित् वर्षेषु पूर्वेव मया सह संस्थापक महोदयेन कथितवान् कि अस्य द्वितीयशाखा अवश्यमेव भवेत्, तस्य महोदयस्य स्थानं तत्र भविष्यति। अहमेव आशा करोमि यत् अस्य शाखा यदि अन्यस्य ग्रामस्य क्षेत्रे भविष्यति तर्हि शिक्षाक्षेत्रे अस्य जो यत्नां वर्तते तस्य अति उन्नति अतिभावेन से समृद्धि बिहार राज्यस्य उन्नति भविष्यति। एनं इत्थं मम सेवां कृत्वा समापनं करोमि। जयतु संस्कृतं, जयतु राष्ट्रीयध्वजा, जयतु कृषकः, जयतु वन्दे मातरं, जयतु भारतम्। तुझ पे दिल कुर्बान।
आपस में सब धर्म की जगह अपने देश अपने समाज के एक कर्तव्य को प्रयास करें कि हमारे समाज का अच्छे समाज का निर्माण हो। आज के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में उपस्थित
हमारे श्रद्धेय शासी निकाय के अध्यक्ष, हमारे अभिभावक श्री रामचंद्र प्रसाद शाह जी, यहाँ उपस्थित शहर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात विषय विद्वान महोदय, इस विद्यालय के की प्राचार्य एवं आप सभी पितृ एवं माता गुरुजनों, निश्चित रूप से शिक्षा का जो उद्देश्य जो पहले था, वो उद्देश्य द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, लक्ष्य जो इसका था, उद्देश्य था, वो अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से आज भटक चुका है। भले ही व्यवसायिक शिक्षा में हम इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट, रिसर्चर निश्चित रूप से समाज में हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य जो मानव में ज्ञान की ज्योति जलाना, हमारी भारत की संस्कृति में था, उस ज्ञान दान करने में हम अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। चाहे कितना भी हम भाषण कर लें, लेकिन जो हमारी जो संस्कृति रही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े काको लागू पाए, गुरु बलिहारी वहाँ आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारी प्राचीन ज्ञान के आधार सिद्धांत थे, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आवर टीचिंग। और आज यही कारण है कि पूरे विश्व में अशांति है,
पूरे विश्व में भाईचारा की कमी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बजाय हमें स्वयं जन हिताय स्वयं जन सुखाय का भी ध्यान करते हैं। विद्या ददाति विनयम ददाति पात्रता। अब तो शायद हम शिक्षक भूल गए हैं बच्चों में इस सिद्धांत को प्रतिपादित उनके अंदर भरने की भावना हम शिक्षक भूल चुके हैं। आज जरूरत इस बात की कि हम पुनः अपने पुरातन संस्कृति की ओर लौटें और जो हम अपने व्याख्यान में भले ही हम अपने पीठ थपथपा लेते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो किताब नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ मार्क्स लाने का उसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता, उसका उद्देश्य सीमित रह गया है। हमारी प्राचार्य महोदया भी यहाँ है। ये अब कठिन काम है, लेकिन फिर भी 100% में 5% भी यदि हम अपने पुरातन संस्कृति की ओर लौट सके तो समाज का बहुत बड़ा भला होगा। उपप्राचार्य महोदय यहाँ बैठे हैं, इनके विषय में सोशल साइंस में पढ़ाया जाता था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। लेकिन अब आदमी सामाजिक प्राणी नहीं रह गया। जैसा मैंने कहा, उसका नेचर सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। अपने अगल बगल, अपने समाज, अपने माता पिता, अपने गुरु के प्रति जो उसका कर्तव्य होते हैं वो भूल चुका है। और जब तक इसकी पुनरावृत्ति पुनर्स्थापना नहीं होगी तब तक लाख डॉक्टर प्रदीप झा सर लाख पढ़ाने, मैंने ये सोशल एनिमल, बच्चे इसको लिख भी लें, इसको डिटेलिंग भी कर लें, इसकी व्याख्या भी कर लें, उसको मार्क्स भले 99 सोशल साइंस में आ जाए, लेकिन यदि उस बच्चे में ये भावना पैदा नहीं कर सके, यदि बच्चे में महोदय ये भावना पैदा नहीं कर सके, विद्या ददाति विनयम, मैंने देखा बहुत सारे विद्वान भी, उनको विनय से कोई मतलब नहीं है, पढ़ते हैं विद्या ददाति विनयम, लेकिन विनय से कोई मतलब नहीं है। पढ़ते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पढ़ाते हैं महोदय, लेकिन कितने बच्चों में मातृदेवो भव और पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव की भावना का सेंटिमेंट बच्चों में भर पाते हैं। हमारे ख्याल से, हमारे अन्वेषण में, हमारे इन्वेस्टिगेशन में
वहां पर हम जीरो हैं। तो हमारा निश्चित रूप से मानना है कि दिल्ली मिलन स्कूल के लिए ये एक कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी एक पीरियड जो मॉरल साइंस में हम लोग पढ़ाते हैं, चरित्र निर्माण की बातें, तो सिर्फ पढ़ाने और उसको क्वेश्चन में बच्चे 100% मार्क्स स्कोर करने से नियत से नहीं पढ़ाने, बल्कि चरित्र निर्माण बच्चों में हो, ये भावना उसमें घर करे, मातृदेवो भव की भावना घर करे, गुरु देवो भव की भावना घर करे। इस दृष्टिकोण से, इस उद्देश्य से इसको लक्ष्य बना कर यदि हम कुछ कर पाए तो भले समाज का कल्याण, देश का कल्याण, विश्व का कल्याण हम कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह आज सत्ता लोलुपता, धन लोलुपता, सेल्फ प्रेज की लोलुपता हमें कूट कूट कर भर गई। इसके बजाय मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस बात की भी भावना हम बच्चों में बचपन से ही इनकलकेट करें। डायरी में क्लास वाइज पेरेंट्स को बुलाएं और उनको कहें कि बच्चों में आप ये भावना बचपन से ही भरें। सुबह उठ करके एक बार अपने भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में ये प्रश्न उठा कि पहले किस देव की पूजा होगी, सर्वप्रथम कौन देव पूज्य होगा। तो उसमें ये निर्धारित हुआ कि सबसे पहले एक टास्क दिया गया, एक लक्ष्य दिया गया कि भाई जो भी विश्व की परिक्रमा सबसे प्रथम करेगा उसी देवी की पूजा सर्वप्रथम की जाएगी, सर्वप्रथम वही पूज्यते हो। तो सब लोग कोई मोड़ से, कोई हड्डी से, कोई नाक से, सभी लोग परिक्रमा करने लगे। लेकिन विघ्न विनाशक सिद्धि, रिद्धि सिद्धि दाता गणेश अपने माता पिता के चारों तरफ घूम गए और उन्हें कहा कि मेरे लिए माता पिता हैं, पूरा विश्व है, पूरा संसार है, पूरा विश्व मेरे माता पिता में ही समाहित है। मेरा विश्व का भ्रमण हो गया और वास्तविक में गणेश जी को ही प्रथम पूज्य माना गया हमारे हिंदू संस्कृति में। तो मेरा कहना है, और महोदय को मैं निश्चित रूप से कहा हूँ, और यदि ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करेगा, अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि उस परम शक्तिमान के आगे मनुष्य की इच्छा कोई मायने नहीं रखती है। मम इच्छा सर्वनाशे दैव इच्छा परवरे। तो यदि
परम शक्तिमान शक्ति की कृपा होगी। उसकी इच्छा होगी तो निश्चित रूप से जो मेरे मन में है वो एक आश्रम है, गुरुकुलम आश्रम। निश्चित रूप से मैं जीवन के बचे हुए क्षणों में उसको मूर्त रूप देने का प्रयास करूंगा, और जब तक वो मूर्त रूप आएगा मेरी इस इच्छा का प्रभु की कृपा से, तब तक महोदय भी यहाँ के कार्यभार से सरकारी मुक्त हो जाएंगे, और वहाँ इनको हमारी जो पुरातन संस्कृति है, वेद शास्त्र, हवन पूजन, जितना मैंने आपको कहा है कि हमारी पुरातन संस्कृति के जो उद्देश्य, जो लक्ष्य रहे हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विषय के ज्ञान के साथ साथ पहले चरित्र निर्माण, उसके बाद सांसारिक विषयों का ज्ञान देने के लिए मैं कार्य करूंगा। और महोदय उसके बाद उनको महोदय, बड़े महोदय से पहले हमारे ख्याल से प्रदीप जाजी का टाइम आ जाए, तो आश्रम होता है ना, तो आश्रम को स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण उस ढंग के आश्रम का निर्माण की ओर हम गतिशील होंगे, और आप लोग से सभी से आग्रह करेंगे कि अपने पारिवारिक दायित्व से मुक्ति, प्रभात पारिवारिक दायित्व से मुक्ति, और साहित्य इंग्लिश के विद्वान बहुत हैं, लेकिन वहाँ भी सोशल क्लास करना, पारिवारिक दायित्व से होना चाहिए। सब लोग जितना विद्वान है उसका 50% भी साहित्य दे दे तो बच्चे अंग्रेजी से कम नहीं मिलेंगे। समर्पित भाव, समर्पण की भावना होगी, कुछ पाने के एवज में कुछ देना है, ये भावना नहीं होगी उस आश्रम में। आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि जब तक ये मेरी इच्छा मत रूप लेगी, तब तक आप में से जो लोग अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन से मुक्त हो जाएंगे, जब आपकी इच्छा करेगी आप आश्रम को, इस संसार के भविष्य को संभालने में अपना कुछ योगदान दे सकें, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना बच्चों में बढ़ सके, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना बढ़ सके, विद्या ददाति विनयम की भावना बढ़ सके। इन भावनाओं के साथ आप सभी उस आश्रम में पहले से एडवांस आपको निमंत्रण है, बुकिंग फर्स्ट। और अपेक्षाओं के हाँ, साथ हम दे देंगे नाम। मैं आप सभी का, सभी के मंगल कामना करता हूँ। हाँ, राष्ट्र और विश्व के, राष्ट्र में पूरे विश्व के उन्नति की मंगल कामना करता हूँ। और कम से कम बहुत नहीं थी जिम्मेदारी इंटरनेशनल स्कूल में एक पीरियड चरित्र निर्माण, सही चरित्र निर्माण के लिए देने की कार्य संस्कृति आप लोग यदि डेवलप कर सके
विकसित कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका अभिवादन। समस्त गुरु, पितृगुरु और माता गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। Honorable Founder Sir, Director Sir, Joint Director, Principal Ma'am, teachers and non-teaching staffs. I, Pradeep Kumar Dhan, Vice Principal of GD Rice, feel immense pleasure to deliver the vote of thanks and especially the Chief Guest who has given the inspiring speech to us. I would like to thank the the founders. What he said, generally, it makes us the real human. If we feel as the teachers, we should obey them what they say. I would like to thank all the persons who are gathered, the dignitaries, who have given the valuable time to make this 73rd celebration of Independence Day success. So no doubt, what we are, we can say that it is not the ocean. We are here, a small picture, but we are trying to fulfill the desire of the founders, and generally, we are always with you. Where you are, we shall go with you. No doubt, you have to accept us. And we are the members of your family. The GD Rice is like that. Once again, I would like to thank the teachers and non-teachers, persons, non-persons who are here, whose contribution made it successful, this celebration of Republic Day. So thank you, thank you, thank you.